हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्वालिटी इक्वेशन के बारे में। ठीक है, आई विल ट्राई टू मिक्स अप द लैंग्वेज वंस अगेन सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। फ्रॉम लेटर ऑन वीडियो आई विल ट्राई टू मेक इट बोथ लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में मैं ट्राई करूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि इफ यू वांटेड टू वॉच इन हिंदी और इंग्लिश सेपरेटली यू कैन गो एंड वॉच। ठीक है, सो आज के वीडियोज में वी आर गोइंग टू नो अबाउट Newton's formulas in quadratic equations. First lectures we have completed. We can go and you can watch the first lectures. Second lectures, I'm going to start with Newton's formula. Newton's formula in quadratic equation is very hot topic. So many questions they have asked in Newton formula in the last 3 to 4 years. आज देखेंगे कि कैसे questions they are asking and how we are going to solve those questions. ठीक है, let us understand the theoretical part. Afterwards, I'll come back on the questions. ठीक है, so theoretical part is what? Let us suppose the quadratic equation we have. This is our quadratic equation. ठीक, quadratic equation is having two roots, alpha and beta. ठीक है, if these roots are there for the quadratic equation, what does it mean? It will satisfy this given equation. मतलब a alpha square plus b alpha plus of c is equal to 0. I can write like this. Correct. I can write this one also, a beta square plus of b beta plus of c is equal to 0. ठीक है, now what I did it, I multiplied this equation with the alpha power n, and this equation I multiplied with beta power n. I'm trying to explain you how the Newton's formula will be there and how the questions they will be asked. For that I'm giving you little bit logic proof so that you can understand the things better. I multiplied alpha power n in this equation, so what I got, a alpha n plus of 2 plus of b alpha n plus of 1 plus of c alpha n is equal to 0. इस equation में multiplied with beta n, beta raised to power n. What I got it, a into beta n plus of 2 plus of b into beta n plus of 1 plus of c into beta के power n. All right, so this is the equation we got it from these two by multiplying alpha power n and beta power n in the given equation. What I did it now, क्या किया मैंने, इन दोनों equation को add कर दिया. Now after adding, here become a alpha power n plus 2, b beta n plus of 2, a I took common. So what I got, final equation, a alpha n plus of 2 plus of b n plus of 2, correct, plus b alpha n plus of 1 plus of beta n plus of 1 plus of c alpha n plus of beta n equal to 0. That part will be not much visible, but nothing is written. Alpha n plus of beta n, c is outside, equal to 0. Now, so this is the equation. Now what I did it, let us suppose that, acha, one more thing, this is the first equation. Now what I did, write the second equation. Second equation, what I did, first minus second, yeah, second minus first, whatever. So if I wrote first minus second, I wrote first minus of second. Let us suppose this is equation number 1, equation number 2, equation number 3 is here. So I did first minus second, I wrote a into alpha n plus of 2 minus beta n plus of 2 plus of beta alpha n plus of 1 plus of beta n plus of 1 plus of c alpha n minus beta n equal to 0. ये इक्वेशन आ गया. ठीक है, नाउ व्हाट आई डिड इट इन द थर्ड, दिस इज योर, लेट अस सपोज कि फोर्थ इक्वेशन है. कौन सा इक्वेशन है? फोर्थ इक्वेशन. सो नाउ वी गॉट टू इक्वेशन फ्रॉम हियर. फर्स्ट इक्वेशन इज a alpha n plus of 2 plus beta n plus of 2 plus of b into alpha n plus of beta n plus of c into n plus of 1, c into alpha n plus of beta n. ठीक है, now what I'm going to do, I'm representing the whole equation with one symbol. What is that? Sn is equal to alpha n plus of 1, alpha n plus of 1 plus of beta n plus of 1. That is Sn I have written. ठीक है, and Tn what I'm writing, this is just representation I'm making it, alpha n minus of beta n. This is the Tn. ठीक है, now what this equation will be, let us see. A Sn plus of 2, because here n plus of 2 plus of b Sn plus of 1 plus c Sn is equal to 0. Now if I'll write the minus 1 equation, then what it will be, put it alpha n minus beta n as equal to Tn. So what I can write, T n plus of 2 plus b
Tn plus C, sorry, Tn plus of 1 C Tn equal to 0. So this is the two equations we represent as a Newton's formulas, and from these two equations we'll try to find it out. How the questions they are asking from that. Okay, from these two equations we'll just manipulate it. I will just explain you. Let us suppose quadratic equation is x square minus 5x plus 4. ये quadratic equation है, ठीक है. अब मुझे क्या लिखना है, अब मुझे न्यूटन्स फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है. तो क्या करूंगा, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 1, तो व्हाट आई राइट 1 इंटू एस एन प्लस ऑफ 2. कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे क्या है 5 लेट अस सपोज, तो व्हाट आई राइट माइनस 5 एस एन प्लस ऑफ 1 प्लस 4 एस एन. मतलब नथिंग यू हैव टू डू, जस्ट मल्टीप्लाई विद द कोफिशिएंट, ठीक है. एस एन प्लस ऑफ 2 दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x square into Sn plus of 2, coefficient of x into Sn plus of 1, and constant term simply multiply with s of n. ठीक है. अगर मैं इसको tn के टर्म में लिखना चाहूं तो क्या, what I can write, tn plus of 2 minus 5 tn plus of 1 minus 4 tn equal to 0. ये इसके फॉर्मेट में होगा, ठीक है. You can note it down, these all questions. Okay, whatever the theoretical part I have written it, this is the format. One more question I'll take it here, उसके बाद we'll start doing the questions. ठीक है. जैसे कि मैं बात करूं इस इक्वेशन पे, कहाँ पे इरेज कर दूं, यहाँ पे. तो लेट अस सपोज एक इक्वेशन है, मैंने ये दे दिया कि 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 0. ठीक है. राइट द इक्वेशन. व्हाट आई राइट, 3Sn प्लस ऑफ 3Sn कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सो Sn प्लस ऑफ 2, कोफिशिएंट ऑफ x मतलब s ऑफ n प्लस ऑफ 1 माइनस 4Sn इक्वल टू 0. ये क्या हो गया, ये इक्वेशन. सो डिपेंड अपॉन द क्वेश्चंस की हाउ द क्वेश्चन दे आर आस्किंग इन टर्म्स ऑफ Sn और दे आस्किंग इन द टर्म्स ऑफ Tn. बेस्ड ऑन दैट वी विल ट्राई टू मैनिपुलेट इट. ठीक है. ओके, नाउ कॉपी इट आउट ऑल द थिंग्स एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस ऑल टॉपिक्स. तो चलो स्टार्ट करते हैं. Let us see how they are asking the question based on the Newton's formulas. अच्छा, Newton's formula ये फिजिक्स वाला न्यूटन्स नहीं है, ये मैथमेटिक्स में दिस टॉपिक बेसिकली वी यूज्ड टू से एज अ न्यूटन फॉर्मूलाज. ठीक है, कोई ऐसा कुछ ये नहीं है. विल सर्च इट इन एनी बुक्स तो कहीं मिलेगा नहीं. ठीक है, just simply we just put in the name as a Newton's formula, nothing else. So alpha n plus a beta n they have given as Sn. They have इक्वेशन इज 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2. ये 2020 जेई में पूछा गया है क्वेश्चन. 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0. इसका दो रूट्स हैं, एक अल्फा है एक बीटा है. ठीक है. अब Sn इज रिप्रेजेंटिंग अल्फा एन प्लस अब बीटा एन. एन का वैल्यू 1 2 3 ऐसे कुछ इंटीजर्स है. अब ये प्रूव करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है. अकॉर्डिंग टू आवर थियरी व्हाट इट सेज कि 5 इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट. तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर के साथ Sn प्लस ऑफ 2 लिख दिया, सही है. नाउ कोफिशिएंट ऑफ एक्स व्हाट 6, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ क्या Sn लिख दिया, माइनस Sn प्लस ऑफ 1 ईयर माइनस 2, कांस्टेंट टर्म के साथ क्या Sn लिख दिया, इक्वल टू हाउ मच 0. अब मुझे क्या चाहिए, 5s6 चाहिए, राइट. 5s6 चाहिए. ठीक है. तो 5 का कोफिशिएंट ये है, यहाँ पे मुझे 6 चाहिए, तो n का टोटल वैल्यू कितना लूं 4, तभी तो यहाँ पे 6 आएगा. तो 5s कितना ले लिया 6, मतलब n इज इक्वल टू मैंने इक्वेशन में डाल दिया 4. ठीक है, n आई कैन पुट अप एनीथिंग. तो कितना हो गया प्लस 6s5 इज इक्वल टू कितना 2s4. ठीक है, यही सही है इक्वेशन. तो फर्स्ट इज योर आंसर. ठीक है. ऐसे एक क्वेश्चन तो 2 लाइन का है, मतलब ये 10 सेकेंड का क्वेश्चन है. कैसे 6x4, राइट. अब सी 6x4 यहाँ पे मुझे क्या लेना चाहिए 4, मतलब 5 के साथ क्या आना चाहिए 5. अच्छा, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं. हाँ, तो यहाँ पे क्या है 2s4, यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, माइनस 2s4 होना चाहिए. तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया. ये वाला देख लेते हैं 6s6, तो मतलब s का वैल्यू कितना होना चाहिए 4. ठीक है, तो 6 के साथ क्या लो 4, मतलब s का वैल्यू 5 होना चाहिए. ठीक है, तो ये आ गया 5s5, सही है. तो मैंने यहाँ पे, ये तो गलत है यार. कैसे, कोफिशिएंट पे जो एक्स स्क्वायर होगा वो हायर टर्म रखेगा, राइट.
तो हायर टर्म 5 ज्यादा होगा ना, तो ये तो ऐसा ही गलत है। इसको देख लेते हैं, 5a6, ठीक है, यहाँ पे 6 ले लिया, मतलब इसके साथ कितना होगा 5, सही है। ये पे क्या लिखा, प्लस लिखा, गलत है ये, ठीक है, ये क्या है, गलत है। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो एग्जाम में ना यू कैन जस्ट यूज द लॉजिक, ठीक है, ऑप्शन से क्वेश्चन कैसे करते हैं दैट आल्सो यू शुड नो, क्योंकि एग्जाम में ना केवल टिक करना है क्वेश्चन, इट्स नॉट ए मैटर कि इस एग्जाम में बेसिकली कि हाउ मच यू नो, ठीक है, कितना आपको पता है, दैट्स नॉट ए मैटर एट ऑल, ठीक है। तो जस्ट सी द क्वेश्चन, जितना फास्ट हो जाए दैट्स like very good for the attempting, because you can attempt more than number of questions if you can do very fast, ज़्यादा if you are doing fast it like, तो you can do number of questions here, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन है अल्फा बीटा इसका रूट है। अब इसने दे रखा है कि ए एन का वैल्यू अल्फा एन और माइनस बीटा एन है, तो 8n माइनस 2a8 3a9 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है जी। अब क्या होगा, पहले न्यूटन्स फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखेंगे कि यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे 10 चाहिए, 8 चाहिए, 9 चाहिए, मतलब n इज इक्वल टू व्हाट, लोवेस्ट वन 8 आई कैन पुट अप, राइट। तो एक्स स्क्वायर के साथ n प्लस अप 2, मतलब ये हो गया tn दिया है ना क्वेश्चन में, an दिया है, मतलब an प्लस ऑफ 2, ऐसे लिख लिया। पहले लिखने का कोई जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग आई एम राइटिंग यू, अदरवाइज निकलेगा कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी। माइनस 2n इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या जरूरत है, 10 तो n का वैल्यू में कितना रख दूं, 8, तो ये 10 हो गया, माइनस 6 ये कितना हो गया, 8 प्लस ऑफ 9, तो a 9 हो गया, माइनस 2a8 हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, 2a8 ऊपर चाहिए, इसको उधर ले गया, तो a10 माइनस 2a8 डिवाइडेड बाई कितना, इक्वल टू कितना है 6a9। मुझे क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो 3 दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो ये कितना के बराबर आ गया, 2 के बराबर, तो आंसर इसका 2 हो गया। सो दिस क्वेश्चन आर वेरी वेरी सिंपल। अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसपे और सम मोर एटलीस्ट 5 क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू हियर। मैं क्वेश्चंस लिख के दूंगा ताकि यू विल नॉट हैव मच यू विल नॉट वेस्ट टाइम हियर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, ये जेई 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। इसका अल्फा बीटा 2 रूट्स हैं, बट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। अब ये बोल रहा है कि pn जो है, pn an tn कोई भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में कैसे भी दे सकता है। pn इज इक्वल टू अल्फा पावर n माइनस बीटा पावर n। अब ये वैल्यूज, इसका वैल्यूज कुछ निकालना है, ये इंटीजर टाइप में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। क्या करना है, पहले ये p17 है, p17 ठीक है, p18 यू टेक इट आउटसाइड p17, तो व्हाट आई गॉट इट, p20 मिला यहाँ पे 5 रूट 2, यहाँ पे क्या मिला p19, ठीक है जी। अब यहाँ से p18 का वैल्यू ले लिया, ये व्हाट आई गॉट इट हियर, इफ आई टुक दिस वन कॉमन, p19 प्लस 5 रूट 2, p19 मिला, ठीक है जी। अच्छा एक मिनट, 18 ले लिया ना कॉमन, 18 ले लिया तो p19 यहाँ पे मिलेगा 18, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं, अब इक्वेशन पे आते हैं, न्यूटन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मुझे क्या चाहिए 2019, राइट, तो 5 रूट 2 मिडिल वाला टर्म है, करेक्ट, ये इससे एक छोटा होना चाहिए, राइट। तो मुझे 19 चाहिए, मतलब n का वैल्यू व्हाट आई कैन पुट अप 18। मैं कैसे डिसाइड कर रहा हूं, वंस मोर आई विल एक्सप्लेन यू। तो ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, एक्स स्क्वायर सॉरी, तो ये 2 ज्यादा है। कैसे मैंने डिसाइड किया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, सी 5 रूट 2 जो है ना वो कोफिशिएंट ऑफ x है। 5 रूट 2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। अगर 5 रूट 2 कोफिशिएंट ऑफ x है और अगर ये 19 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होना चाहिए, एक जगह 20 होना चाहिए, इट शुड बी 20, तो 20 रखा हुआ है, मतलब क्या रख दो इस इक्वेशन में, n इज इक्वल टू 18। सो राइट इट नाउ, p18 प्लस 5 रूट 2 p, अच्छा 18 रखना है ना, 20 19 प्लस 10 p कितना होगा ये 18 इक्वल टू 0। व्हाट आई नीड एक्चुअली, p20 5 रूट 2 p19, ये वैल्यू मुझे चाहिए, तो उसको इधर सेंड कर दिया, तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच आई गॉट, माइनस 10 p18,
दिस इज द वैल्यू ऑफ इसका, ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट आई कैन डू, आई विल फाइंड द डाउन वन। नाउ 19 18 तो 17, n इज इक्वल टू 17 होगा, n इज इक्वल टू 17 रख दिया तो कितना मिल गया यहाँ पे, P17 प्लस 5√2 P, अच्छा यहाँ पे 19 हो जाएगा, 19 18 प्लस ऑफ P17, ठीक है जी। मुझे क्या चाहिए, मुझे ए टर्म चाहिए, तो इसको कॉमन ले लिया, इक्वल टू 0, मतलब दिस इज इक्वल टू हाउ मच, P19 प्लस ऑफ 5√2 P18 और दिस वैल्यू इज नथिंग बट माइनस P17, ठीक है, -10 यहाँ पे होगा, -10 P17, राइट है। अब क्या करूँगा, इसका वैल्यू यहाँ पे डाल दिया, तो व्हाट आई गॉट इट, P17 इंटू दिस इज हाउ मच, -10 P18 डिवाइडेड बाई P18 इंटू इसका वैल्यू कितना हो गया, -10 P17, ठीक है, P17 P18 P18 राइट, 10 10, तो कितना आंसर आ गया, 1 आ गया, खत्म। दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा, इसमें डिसाइड कैसे करेंगे कि एन का वैल्यू, बहुत सिंपल है दोस्त, यू हैव टू नॉट टेक दैट मच टाइम, व्हाट एवर आई हैव टेकन जस्ट टू एक्सप्लेन यू, इतना कुछ करना नहीं है यार, ये तो पेन भी नहीं उठाना इस क्वेश्चन में, ठीक है, 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये। कैसे डिसाइड करना है, सी हियर, पहले मुझे पता चल गया कि इसमें क्या कॉमन है, दोनों टर्म्स में 17 कॉमन है, इसमें 18 कॉमन है, ऐसे लिख दिया, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, 20 चाहिए, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 20 चाहिए, मतलब एन कितना, 2 लेस 18 रख दूंगा, तो इसमें रख दिया यहाँ पे, तो ये अगर 20 हो जाएगा, ये 19, ये कितना 18, तो 20 और 19 तो ऊपर आ गया, ये कितना हो गया, माइनस P18 आ गया। अच्छा, उसी तरह से ये 19 हो गया, ये 19, तो ये कितना 18, ये कितना 17, ठीक है। अब नीचे वाला ये 17 रख दिया, 17 से 17 का 18 से 18 का डन, 10 से 10 कैंसिल इट आउट, आंसर गॉट इट 1। ऐसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, ठीक है, बट मेक श्योर कि मतलब वो कैलकुलेशन मिस्टेक शुड नॉट बी दैट, ठीक है, कैलकुलेशन गलत नहीं होने का, ठीक है। इफ यू आर डूइंग इट विदाउट पेन तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होने का, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम डूइंग विदाउट पेन तो राइट इट, ठीक है, लिख लेने का, ऐसे ये नहीं कि पेन नहीं यूज करूंगा उसमें क्वेश्चन गलत हो जाए, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल एक्चुअली, ठीक है, ये सब ध्यान में रखना है। लेट अस डू द नेक्स्ट सम मोर क्वेश्चंस हियर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। आई हैव रिटन हियर 3 क्वेश्चन, एक 2021 का है, 2022 का है, 2023 का है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चंस हाउ दे आर आस्किंग दिस टाइम, ठीक है। अच्छा, नाउ अल्फा प्लस बीटा 1 दे हैव गिवन, ठीक है। पहले मैं 2021 करता हूँ, ये इंटीजर टाइप में क्वेश्चन पूछा गया है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1 है, अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1 है। अब मुझे क्या चाहिए, पी एन क्या है, अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन, ठीक है। Pn-1 कितना है, 11 के बराबर, और पी ऑफ एन प्लस ऑफ 1 कितना के बराबर है, 21 दिया हुआ है। अब ये मांग रहा है पी स्क्वायर एन का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। अच्छा, पहले क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, सो डायरेक्ट इक्वेशन यू कैन राइट, ठीक है, मैं लिख देता हूं बट इन एग्जाम डोंट राइट इट, ठीक है, वो डायरेक्ट इक्वेशन लिख लेने का, ये इक्वेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दिया, तो कितना मिला मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मिल गया। इसका कितना रूट है, अल्फा एन बीटा है, ठीक है जी। अब पी एन क्या कर रहा है, पी एन एक ऐसा टर्म है जो अल्फा एन प्लस बीटा एन रखता है, करेक्ट है। अगर पी एन अल्फा एन प्लस बीटा एन, तो मुझे क्या चाहिए, इस इक्वेशन में रख दिया, तो पी एन प्लस ऑफ 2 माइनस ऑफ पी एन प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ पी एन इक्वल टू कितना मिला, मुझे 0 मिलेगा, करेक्ट है। अब नाउ सी, मुझे क्या चाहिए, P ऑफ n माइनस ऑफ 1 11 है, P ऑफ n प्लस ऑफ 1 29 है, और Pn मुझे चाहिए, मतलब n मुझे चाहिए, n प्लस ऑफ 1 है, n माइनस ऑफ 1 है, तो व्हाट इज n आई कैन टेक, n आई कैन टेक इट एज ए n माइनस ऑफ 1, तो इस पूरे इक्वेशन में n माइनस ऑफ 1 को सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, तो ये कितना बन गया, n प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ n माइनस ऑफ P ऑफ n माइनस ऑफ 1। क्वेश्चन मैंने क्यों n माइनस ऑफ 1 से सब्स्टिट्यूट किया यार, यू कैन सी द क्वेश्चन और उससे पता लग जाएगा ना यार कि कौन सा वैल्यू मैं लूं। n माइनस ऑफ 1 है, n प्लस ऑफ 1 है और n है, इसमें सबसे ज्यादा कौन सा है, n प्लस ऑफ 1, उसके बाद n, उसके बाद n माइनस ऑफ 1, मतलब n लूंगा मैं, ठीक है, क्या लूंगा मैं, n को n माइनस ऑफ 1 से सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है इसने, पी एन स्क्वायर, ठीक है, p ऑफ n माइनस ऑफ 1, मतलब इसका वैल्यू इसने दे रखा है 11, ठीक है।
तो मैं वैल्यू रख लिया p ऑफ n प्लस ऑफ 1 29 है, ठीक है जी। n माइनस ऑफ 1 तो मुझे पता करना है इसको, pn माइनस कितना है 11 इक्वल टू 0। तो pn का वैल्यू मुझे कितना मिल गया यहाँ से 29 माइनस ऑफ 11 दैट इज 18। तो pn का वैल्यू मुझे 18 मिल गया। मुझे क्या चाहिए p स्क्वायर n चाहिए, मतलब 18 का स्क्वायर चाहिए, मतलब कितना 18 का स्क्वायर 324 होता है। दैट्स आंसर फॉर 324। इंटीजर टाइप में क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं। 2022 में एक क्वेश्चन पूछा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। पी एन दिया है अल्फा एन माइनस बीटा एन, P15 P16 P14 P16 समथिंग दिया हुआ, ठीक है। पहले क्या करेंगे इसको ऐसे क्लब कर देंगे, ठीक है, दो दो के पेयर में क्लब करेंगे तो यहाँ से फैक्टर आ जाएगा। कैसे P16 को बाहर ले लिया, P15 माइनस P14 माइनस P15 को कॉमन ले लिया, P15 माइनस ऑफ P14, ठीक है जी, डिवाइडेड बाई क्या मिला मुझे P13 इंटू P14, ठीक है। अब क्या करेंगे इसे P14 15 कॉमन ले लेंगे, P15 माइनस ऑफ P14 यहाँ से क्या हो जाएगा P16 माइनस ऑफ P15 डिवाइडेड बाई क्या P13 इंटू P14, ठीक है। अब इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। मुझे क्या चाहिए 15 14 चाहिए, 15 14 चाहिए। तो इसी द इक्वेशन सी यहां से इक्वेशन में पता चल जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, इन दोनों का कोफिशिएंट कितना है 1। तो मुझे ये कंफर्म हो गया कि जो मुझे n चाहिए वो 13 चाहिए, ठीक है। n क्या चाहिए 13 चाहिए। तो यहां पे मैंने 13 रख दिया तो कितना मिला मुझे P15 माइनस P14 माइनस ऑफ 4 P के पावर 13 इक्वल टू 0। तो इसका वैल्यू मिल गया P13 माइनस P14 इज इक्वल टू 4P13। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है जी, ये वाला वैल्यू मिल गया। अब इसको देख लेते हैं P16 रख दिया, ठीक है 16। अब 16 15 तो n का वैल्यू व्हाट आई पुट अप, n का वैल्यू आई पुट अप एज 14। तो n का वैल्यू 14 रख दिया तो P14 प्लस अप टू 16 माइनस 15 इज इक्वल टू कितना P14, ठीक है। अब वो उधर जाएगा, ये 4 4 हो गया। अब ये वैल्यू कहाँ उठा कर रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। जैसे ही ऊपर रखा तो P13 P14 आ गया, ठीक है। नीचे नहीं दिखा रहा, मैं यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया इसका वैल्यू कितना रख दिया P13, मतलब कि 4 इंटू P13, ये इसका वैल्यू हो गया। दिस वन वैल्यू हाउ मच 4 इंटू P14, ठीक है 4 इंटू P14 डिवाइडेड बाई कितना है P13 इंटू P14। 13 14 कैंसिल, 13 14 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 16। आंसर कितना आ गया 16। मेरे दोस्त अगर ये दिखाई नहीं दे रहा है तो यू ट्राई बाई योरसेल्फ, ठीक है। सब वीडियो पे डिपेंड नहीं करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सारे को एक बार फिर से अटेम्प्ट करना है अपने से, ये इस पे नहीं डिपेंड करना है कि सर उधर दिख नहीं रहा है मैं क्या करूं, कोई दिक्कत नहीं है, अटेम्प्टेड बाई योरसेल्फ, ठीक है। अपने से क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करने का, वीडियो का केवल हिंट लेने का, ठीक है, केवल हिंट लेने का। जो मैंने थियोरी बताया है वट एवर टॉट ए थियोरी उसी पे कंसंट्रेट करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। अगर कहीं पे कुछ नहीं आ रहा तब वीडियो का जरूरत लेने का, ठीक है। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन में आते हैं। an इज इक्वल टू हाउ मच 19n माइनस 12 पावर, सॉरी an दिया हुआ है, ये 2023 का क्वेश्चन है। an इज इक्वल टू 19n माइनस 12n डिवाइडेड बाई, अच्छा ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। an का वैल्यू कितना है 19n माइनस 12 पावर n, 90 पावर n 12 माइनस 12 पावर n। क्वेश्चन में पूछ रहा है 31a9 माइनस a10 डिवाइड बाई 57a8, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। व्हाट यू कैन डू नाउ हियर। अब मुझे यहां से an का वैल्यू चल गया पता कि अल्फा पावर n माइनस ऑफ बीटा पावर n, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू यहां पे है 19 और बीटा का वैल्यू क्या है 12, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा अल्फा प्लस बीटा पता करूंगा, कितना हो गया 31, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 19 इंटू 12, ठीक है। अच्छा अब मुझे इक्वेशन भी मिल जाएगा -31x माइनस प्लस 19 इंटू 12, ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब मुझे क्या चाहिए 31a9 चाहिए,
मतलब यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, तो रख दिया मैंने। कितना रखूंगा, ए का वैल्यू 8 रखा, तो ये 10 हो गया माइनस 31, ए का वैल्यू 9 प्लस ऑफ 19 इंटू 12, ए का वैल्यू 8 इक्वल टू 0। अच्छा मुझे चाहिए इसका वैल्यू, इसका वैल्यू मुझे चाहिए। अच्छा ये माइनस में कोई दिक्कत नहीं, माइनस जाएगा उधर, स्प्लिट हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। अच्छा मैं ये पार्ट इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि दिख सके, ठीक है। आई होप यू कॉपीड इट आउट, अगर नहीं है तो वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से कर लेने का, ठीक है। तो कितना मिला मुझे, A10 माइनस 31 A9 इज इक्वल टू कितना मिला, माइनस 19। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करने का कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, सिंप्लीफाई करने का कोई जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आंसर में आ जाएगा। वो क्या है, ये वाला वैल्यू। अब मैं क्या किया, माइनस को इधर मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 31 A9 है, माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, उलट गया ये, ठीक है। डिवाइडेड बाई कितना, 57 पूछ रहा है, ठीक है, तो मैंने A8 कर दिया, ठीक है। ये कितना के बराबर है, 19 इंटू 12, करेक्ट। अब मुझे क्या चाहिए, 57 चाहिए, मैं 57 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, 3 4, तो आंसर कितना हो गया, आंसर इज 4, खत्म। तो यहां पे क्या था, इस क्वेश्चन में लिटिल डिफरेंट था, क्या, अल्फा पावर एन बीटा पावर एन का वैल्यू इसने दे रखा था, ठीक है। उससे मैं इक्वेशन निकाल लेता, इक्वेशन निकालने के बाद फिर मैं देखता कि क्या मुझे चाहिए, 31 A9 चाहिए। 31 का बेसिकली वैल्यू मिडिल वन है, तो मिडिल वन मुझे 9 चाहिए, मतलब n का वैल्यू 8 चाहिए। सो आई पुट अप इट इन दिस इक्वेशन, जो भी मुझे इक्वेशन बना यहाँ पे मैंने रख दिया, रख के फिर वहां से वो वैल्यू निकाल लिया। सो सिंपल इट इज। चलो दोस्त स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है 2020 का क्वेश्चन। क्या पूछा है इसने, इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0, अल्फा बीटा इसका दो रूट्स है। एक पी के है जो अल्फा प्लस अल्फा के प्लस अल्फा पावर के प्लस बीटा पावर के है। तो बताना है कि विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है। ये मुझे बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे, पहले ये करेंगे कि आई फाउंड इट कि पी के जो दिया है अल्फा के प्लस अब बीटा के दिया है, ठीक है। तो मैं क्या किया, पहले के का वैल्यू 1 रख लिया, तो P1 इज इक्वल टू कितना मिला मुझे, अल्फा बीटा। अच्छा अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, सम ऑफ रूट्स, यहां से तो मुझे ये वैल्यू पता ही है, सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, 1 माइनस बी बाई ए। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो यहां से अल्फा प्लस अब बीटा मुझे मिल गया 1। अब P2 कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस अब बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस अब बीटा स्क्वायर का इसका वैल्यू मुझे पता चाहिए, मतलब यू कैन फाइंड इट बाय यूजिंग ए प्लस अब बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab को इधर फेंक दिया, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, ठीक है जी। अच्छा इसका वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस बीटा का 1 माइनस माइनस प्लस 2 कितना हो गया 3। P2 का वैल्यू मुझे कितना मिल गया 3। अब मुझे P3 का वैल्यू चाहिए, P3 का वैल्यू चाहिए, P3 का वैल्यू क्या इस इक्वेशन से मिलेगा, P3 का इस इक्वेशन से क्या मिलेगा, हाँ तो रख दिया उसमें P3 माइनस अब P4 माइनस अब कितना P2 इक्वल टू 0। मैंने क्या रखा, सॉरी 3 2 1, के का वैल्यू 1 रख दिया इस इक्वेशन में बाय यूजिंग न्यूटन्स फॉर्मूलास। तो P3 माइनस P2 माइनस अब P1 इक्वल टू 0। यहां से P3 का वैल्यू कितना मिल जाएगा मुझे, P1 प्लस अब P2, ठीक है जी। अब P1 प्लस अब P2, P1 कितना है 1, P2 कितना है 3, 3 प्लस अब 1 कितना हो गया 4, 3 प्लस अब 1 कितना हो गया 4। अच्छा इस सारे क्वेश्चन में ना मुझे P5 का चाहिए, तो मुझे P5 तक पता ही करना होगा, अदरवाइज आई कैन नॉट डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तभी मैं ये सबको निकालना पड़ रहा है, ठीक है। ये जेई का क्वेश्चन है, SSCGL वगैरह का क्वेश्चन नहीं है, जिसमें कि क्या करेंगे कि एक ऑप्शन को अटेम्प्ट करेंगे दूसरा ऑप्शन को टिक कर देंगे, ऐसा नहीं होगा जेई में, ठीक है। ये P5 इसलिए पूछा है ताकि यू कैन फाइंड P5 देन ओनली यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, क्योंकि सारे ऑप्शन में P5 इन्वॉल्व है, ठीक है। इफ यू ट्राई अदर एग्जाम्स या अदर इंजीनियरिंग जो मतलब लाइक स्टेट्स होते हैं या फिर उनका वो जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, तो दोज एग्जाम्स विल बी वेरी इजी, उनमें वैसे पूछेंगे कि ताकि यू कैन इजीली एलिमिनेट, बट जेई के एग्जाम में इट विल बी नेवर हैपन कि यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शन, या समटाइम आई कैन नॉट डिनाई दैट, बट इट विल बी रेयरली, ठीक है। तो P5 यहां से पता करेंगे, ठीक है। P5 पता कर लेते हैं, यहां से ये दिख रहा होगा, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। P5 कितना हो जाएगा, तो मैंने कितना रख लिया
यहाँ पे रख लिया P3 तक मुझे मिला था, राइट। अब मैं P4 रख लिया, तो P4 कितना मिल जाएगा मुझे यहाँ से, P3 प्लस P2, न्यूटन्स फॉर्मूला लगा के मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। उसमें P का वैल्यू 2 रख दिया, तो P3 प्लस P2, P2 कितना है, तो ये 7 आ गया। P5 कितना, P3 प्लस P4 मिल गया, ठीक है। ये 7 प्लस ऑफ 4 कितना हो गया, 11, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करेंगे, सबका वैल्यू 7 प्लस ऑफ 4 यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कितना हो गया, 7 प्लस ऑफ 4 11 के बराबर हो गया। अब मैं चेक करूंगा P5 कितना है, 11, हाँ डी ऑप्शन सही है, मतलब बोला है नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है ये मुझे चेक करना है। P3 क्या है, P5 माइनस P4, तो P3 कितना है, P3 है यहाँ पे P5 माइनस P4, ये तो सही है यार, क्योंकि P3 कितना पूछा है, P5 माइनस P4, तो P3 इससे भी देख सकते हैं ना यार, ये तो इससे भी देख सकते हैं कि P3 रख दिया, यहाँ पे क्या रखा P5, यहाँ पे P4, यहाँ पे P3, राइट। तो P3 ये वाला टर्म हुआ, राइट। तो अब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, सॉरी ये वाला टर्म हुआ, तो ये टर्म क्या P5 माइनस P4, ये तो ऐसे भी सही लग रहा है, मतलब ये सही है। अब क्या पूछा है, P1 कितना 1 रख दिया, P2 कितना 3, P3 कितना 4, P4 कितना 7, P5 कितना 11, तो 4 प्लस ऑफ 8 7 15 प्लस ऑफ 11 11 15, हाँ 26, सही है। अब P5 कितना है मुझे 11, ठीक है, 11 इज इक्वल टू P2 इंटू P3, अब P2 इंटू P3, P2 इंटू कितना है P3, तो ये 12 के बराबर आ जाएगा, 4 इंटू 3 12, ठीक है। तो ये आंसर ऐसे ही गलत हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना, ये तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एक क्वेश्चन कर दिया, ऐसे करना है, बट नो इफ यू फाउंड इट नो, तो डायरेक्ट यू कैन टिक इट, कैसे, P5 का ऑप्शन कितना मिला मुझे 11, अब किसी नंबर से मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा ताकि वो 11 आ जाए, जबकि मुझे पता है कि P2 का वैल्यू 3 है और P2 का वैल्यू 3 और P3 का वैल्यू 4 है, तो इन दोनों का मल्टीपल का भी, तो फर्स्ट ऑप्शन यू कैन चेक इट आउट, ये चेक करने की कोई जरूरत भी नहीं था, ठीक है, डायरेक्टली यू कैन टिक दोज ऑप्शन, ठीक है जी। आगे चलते हैं दोस्त, जहां पे हम नेक्स्ट जानेंगे एक और टॉपिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी हियर, जिसमें पता करेंगे कि हाउ इफ 2 रूट्स आर कॉमन, ठीक है, 2 रूट्स एंड बोथ रूट्स आर कॉमन, सॉरी बोथ रूट्स आर कॉमन एंड 1 रूट्स आर कॉमन, दोज क्वेश्चंस हाउ वी आर गोइंग टू डील इट, ठीक है। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, जेईई में, तो वो भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। तो सिचुएशन टू सिचुएशन मिला, जहां पे एक केस क्या होगा, जब बोथ रूट्स कॉमन होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और एक इक्वेशन एक क्या होगा जहां पे केवल 1 रूट्स कॉमन होंगे, क्या होगा कॉमन, एक रूट कॉमन होगा, सही है जी। अब बोथ रूट्स कॉमन होगा तो मतलब क्या, लेट अस सपोज मैंने एक इक्वेशन ले लिया a1x² प्लस अब b1x प्लस अब c1 इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन ले लिया a2x² b2x प्लस अब c2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब दोनों रूट्स कॉमन मतलब क्या, इसका भी अल्फा बीटा, इसका भी अल्फा बीटा, ठीक है जी। अगर दोनों का रूट अल्फा बीटा मतलब क्या, कोफिशिएंट सब कुछ बराबर यार, सब कुछ बराबर, a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, ठीक है, सब बराबर, मतलब बोथ रूट्स आर कॉमन, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। क्वेश्चन बेसिकली दे आस्क फ्रॉम द व्हेन 1 रूट्स आर कॉमन, ठीक है। अगर मैं ये इक्वेशन लूं b1x प्लस अब c1 इक्वल टू 0, यहां से क्या मिला, अल्फा एंड बीटा मिला, a2x² प्लस अब b2x प्लस अब c2 इक्वल टू 0 मिला, यहां से मुझे 2 रूट्स मिल जाएंगे, एक रूट तो मुझे अल्फा मिला, दूसरा रूट गामा मिल गया, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में एक रूट्स कॉमन है, दैट इज कॉल्ड अल्फा, अल्फा रूट्स क्या है, कॉमन है दोनों में, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सी एक तरीका तो ये है सॉल्व करने का कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आई थिंक यू स्टडीड इन द 10th क्लास में, हालांकि वो टॉपिक डिलीटेड है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अल्फा निकाल लेंगे, ठीक है। या दूसरा तरीका ये है, मैं बताऊंगा, ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि एलिमिनेट कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे, कोफिशिएंट सेम करके x² को एलिमिनेट कर देंगे,
एक्स का वैल्यू रख लेंगे, एक्स का वैल्यू आफ्टर गेटिंग यू पुट इट इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन, वहां से मुझे दूसरा रूट इजीली मिल जाएगा, मतलब जो रूट कॉमन होगा वो मिल जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, दो मेथड। फर्स्ट मेथड क्या, सॉल्व कर लेंगे, कैसे, मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं करके दिखा रहा हूँ, बट इस तरीका से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल ही नहीं करना है, ठीक है। जो दूसरा तरीका बताऊंगा दैट मेथड विल बी सुटेबल फॉर डूइंग द क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं, रख दिया a1 अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ b1 अल्फा प्लस ऑफ c1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे रख दिया a2 अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ b2 अल्फा प्लस ऑफ c2 इज इक्वल टू 0। दोनों रूट्स में अल्फा कॉमन है, तो मैंने क्या किया, अल्फा का वैल्यू रख दिया। अब मुझे क्या चाहिए, अल्फा चाहिए, तो मैंने क्या किया, सी हियर आई रोट अल्फा स्क्वायर, ठीक है जी, क्या लिखा मैंने, अल्फा स्क्वायर। अब मैंने अल्फा स्क्वायर लिखा तो क्या लिखूंगा यहां से, b1 c2, इसको कवर कर लिया और इसको ऐसे डायगोनली मल्टीप्लाई कर दिया, b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है, माइनस इक्वल टू क्या करूंगा, इस बार यहां पे माइनस मल्टीप्लाई कर दिया और सेम मल्टीप्लीकेशन कर दिया ऐसे, तो a1 c2 माइनस a2 c1। एक मिनट यहाँ पे दोस्त, यू अंडरस्टैंड, पीपल डोंट राइट माइनस हियर, और माइनस यहाँ लिखने के बजाय हियर दे विल रिवर्स द डायरेक्शन। मैं डायरेक्शन रिवर्स नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे ऊपर माइनस कर दिया, बाकी सारे जगह सेम कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म को क्या लिखेंगे, 1, क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म को 1 लिखेंगे। इसको कवर कर लिया, कितना मिला मुझे, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है जी। अब मुझे क्या चाहिए, अल्फा चाहिए, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करके उधर उसको इधर सेंड कर दिया, कितना मिल गया मुझे, a2 c1 माइनस a1 c2 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। इसके अनुसार मुझे अल्फा मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, अल्फा मिल गया, खत्म। ये तरीका होता है करने का, बट ऐसे नहीं करेंगे यार, ऐसे जेई एग्जाम में बिल्कुल ना करेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे, आई विल शो यू, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ कॉमन, जैसे एक जनरल फॉर्म लेता हूँ कैसे निकालते हैं कॉमन रूट्स। लेट अस सपोज कि एक इक्वेशन मैंने देखा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये एक इक्वेशन मिला जिसका रूट कितना है, एक रूट है -3, एक रूट है +2, ठीक है, -3 +2 है, मतलब 3n -2 आ जाएगा, 3n -2, ठीक है। अच्छा, अब मैं दूसरा लेता हूं जिसमें क्या होता है कि एक्स स्क्वायर -2 प्लस 1 माइनस एक्स -2, ठीक है, ये ले लिया। तो इसमें क्या होगा, -2 प्लस 1, तो इसमें एक्चुअली ये क्या है कि प्लस ले लिया, ठीक है, हाँ जी, अब सही है। तो इन दोनों में क्या रूट है, इन दोनों में x इजिकल टू -2 एक रूट है, नहीं इसमें नहीं लग रहा है यार, x इजिकल टू, हाँ ये इसमें तो सही है, -2, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, 4 और 4 एंड -2 कितना आ गया, -2 प्लस दिस में से, हाँ सही है, दोनों इक्वेशन में। अब देखते हैं, अब मुझे पता नहीं है, लेट अस सपोज कि मुझे पता नहीं है इसमें दोनों में क्या कॉमन रूट है, कैसे करेंगे। मैंने माना कोई भी एक कॉमन रूट होगा, तो मैंने क्या किया, कोफिशिएंट को बराबर किया, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या किया, बराबर किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करते ही एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये मुझे क्या मिला, -2x, और ये मिले माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये कितना हो गया, -4 इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब मुझे ये मिल गया। अच्छा, तो x का वैल्यू मुझे कितना मिल गया, यहाँ से 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना मिल गया, -2। तो सी ये दोनों इक्वेशन में -2 कॉमन है, इसका अगर मैं निकालूं तो, अच्छा अगर मुझे -2 मिल गया, अब इसमें रख दूंगा मैं, तो मुझे दूसरा रूट भी मिल जाएगा, इसमें रख दिया तो कितना मिलेगा मुझे, अच्छा हाँ ये सेटिस्फाई करेगा, तो मतलब ये दिस इज अ कॉमन रूट। तो तरीका क्या होता है दोस्तों, अगर कॉमन रूट्स हैं तो दोनों इक्वेशन को लिख के उसका एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट सेम कर देंगे और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, एक्स स्क्वायर के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर का टर्म अगर कैंसिल हो जाएगा तो सीधा मुझे वहां से एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, वो अननोन देगा, ठीक है, अननोन देगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा, तो पता ही चल जाएगा, एक रख के दूसरा में देख लेंगे, अननोन कुछ देगा, यहाँ पे लेमडा का टर्म दे देगा, तब बोलेगा लेमडा का वैल्यू क्या होगा, तो दोनों में कॉमन रूट्स होंगे। इसी तरह से करेंगे, एक्स का वैल्यू जो आएगा उसको रख देंगे दूसरे में,
और फिर वहाँ से वैल्यू जनरेट कर लेंगे। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे होता है। तो इसमें कैसे मिला मुझे दोनों, अच्छा मैं देख लेता हूँ इसका रूट्स क्या है, इसका 3 and -2 है और इसका क्या है -2 and 1 है। तो यू कैन सी कि -2 दोनों में कॉमन है, दैट्स व्हाट वी गॉट इट x = -2। ये कंडीशन क्या है, जब 1 रूट्स आर कॉमन, दोनों कॉमन रूट्स होगा तो कोई मतलब ही नहीं ना, बोथ रूट्स कॉमन है यहाँ पे, बोथ रूट्स कॉमन, ठीक है जी। ये कंडीशन है बोथ रूट्स कॉमन का, ये कंडीशन है 1 रूट्स कॉमन। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट नाउ, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जेईई में क्वेश्चन 2020 में पूछा है, 2023 में पूछा हुआ है। दिस इज ऑल्सो आई एम नॉट रिटन विच ईयर इट इज, बट ऐसे कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, एक इक्वेशन ये है x² - x + 2 लैम्डा = 0, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, और एक इक्वेशन ये है जिसका अल्फा गामा रूट्स है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में क्या मांगा है इसने, हाँ क्वेश्चन में इसने मांगा है, ये मांगा है बीटा गामा, सी यार आई एम नॉट राइटिंग फुल क्वेश्चन क्योंकि वो लिखने में टाइम लगेगा, ओनली द कंसेप्ट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन में मांगा है बीटा गामा बाई लिम्डा का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, बीटा गामा बाई लिम्डा का वैल्यू कितना होगा। अब मैं क्या करूंगा, सेम थिंग, दोनों इक्वेशन में अल्फा अल्फा डाला, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो पहले क्या किया, सब्ट्रैक्ट, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे कितना मिला, पहला सेकंड इक्वेशन मेरे पास ये है प्लस ऑफ 27 लैम्डा = 0। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया ताकि कोफिशिएंट सेम बन जाए। अब मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया, सब्ट्रैक्ट करते हैं ये कैंसिल हो गया, ये +7 तो -7x, ये कितना हो गया +21 लैम्डा। तो x = कितना आ गया मेरे पास 3 लैम्डा, x का वैल्यू कितना आ गया 3 लैम्डा। अगर ये कॉमन रूट्स है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, आई पुट अप इट देयर। तो कितना मुझे मिल गया वहां से, मैंने उसमें रख दिया, तो 9 λ², ठीक है जी, माइनस कितना 3 लैम्डा प्लस ऑफ 2 लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे कितना मिल गया 9 λ² और ये मिल गया -λ = 0, तो लैम्डा माइनस ऑफ 9 = 0, ठीक है। यहाँ से ऐसे रूट कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है, कैंसिल करने पे रूट विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है। तो लैम्डा = आई गॉट 0, लैम्डा का वैल्यू मुझे 9 मिल गया, 0 और 9 मिला, ठीक है जी। क्वेश्चन में इसने दे रखा है कि लैम्डा जो है नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ये तो रिजेक्ट हो गया, मतलब लैम्डा का वैल्यू कितना मिल गया मुझे 9, ठीक है। अब लैम्डा का वैल्यू 9 मिल गया, करेक्ट है। तो लैम्डा का वैल्यू 9 मिला तो ये x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 27, x कितना हो जाएगा 27, ठीक है। तो अब क्या किया, लैम्डा का वैल्यू 9 रख दिया, तो इक्वेशन व्हाट आई गॉट इट, x² - x प्लस 18 = 0, ठीक है जी। x² - x प्लस ऑफ 9 × 2 लैम्डा दैट = 0, तो ये आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन रूट्स, राइट। अब क्या करेंगे, कॉमन रूट्स निकालने के लिए यहाँ पे वी कैन अप्लाई कौन सा मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स में कैसे आएगा ये, 9 × 2 6 × 3 18, मुझे दूसरा रूट भी चाहिए, राइट। तो 9 मैं यहाँ पे रख दिया, x = 3 लैम्डा, लैम्डा वैल्यू 3 मिला, तो लैम्डा का वैल्यू 3 मिल गया। अब मैं वहाँ पे रख दिया 9 x² - x प्लस ऑफ 18, x² - x प्लस 18 = 0। तो यहाँ से मुझे x का वैल्यू चाहिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तो मुझे नहीं आएगा, x = रख दिया उसमें 1 ± √b², तो इमेजिनरी रूट्स आ रहा है यार, सॉरी यहाँ पे आई मेड ए मिस्टेक एक्चुअली। यहाँ पे क्या होगा ना, लेमडा को मैं बाहर लिया, 9 लैम्डा माइनस ऑफ 1 = 0, तो लेमडा का वैल्यू 0 या फिर लेमडा का वैल्यू 1/9 हो गया। लेमडा का वैल्यू कितना हो गया 1/9, तो लेमडा का वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में 1/9 रख देंगे, तो कितना मिलेगा मुझे x² - x प्लस ऑफ कितना 2/9 = 0।
अब इसको क्या किया मैंने, सिंप्लीफाई कर लिया, 9x प्लस ऑफ 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स लगाएंगे, हाँ ये आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। ये इन दोनों को लिया, इन दोनों को लिया, इसमें से 3x कॉमन निकाल लिया, 3x माइनस ऑफ 2, और इसमें से 3x माइनस ऑफ 2, तो कितना मिला मुझे, 3x माइनस ऑफ 1, 3x माइनस ऑफ 2। तो x का वैल्यू 1/3 मिल गया मुझे और x का वैल्यू 2/3 मिल गया। ठीक है, अच्छा x का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो मुझे कॉमन कितना मिला था वैल्यू, 3 इंटू 1/9 मतलब कितना, 1/3। तो 1/3 तो मेरा क्या है, अल्फा है, दोनों में कॉमन है, तो 1/3 मेरे पास क्या मिल गया, 1/3 मेरे पास कॉमन रूट्स मिल गए। ठीक है, ये पार्ट्स नहीं दिख रहा होगा तो मैं कहाँ लिख दूँ, इस पार्ट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं दोनों से कॉमन ले गया तो 3x माइनस ऑफ 1 इंटू 3x माइनस ऑफ 2 मिला 0 के बराबर, तो x का वैल्यू 1/3 आ गया और x का वैल्यू 2/3 आ गया। 1/3 यू कैन सी कि यहाँ पे भी आया 3 लेमडा, मतलब ये क्या है, अल्फा का वैल्यू है, और ये किसका वैल्यू है, 2/3, ये गामा का वैल्यू है। ठीक है, तो अब मैं लिख देता हूँ कहाँ पे, यहाँ पे क्या मिला मेरे पास अल्फा का वैल्यू मिल गया मेरे पास, दिस इज विजिबल, ऊपर थोड़ा सा नीचे लिख दूँ ना, अल्फा का वैल्यू 1/3 है। ठीक है, बीटा का वैल्यू, लेमडा का वैल्यू कितना है, 1/9 है। अच्छा, और गामा का वैल्यू कितना है, 2/3 है। ठीक है, 2/3 है। अब मुझे क्या मांगा है, बीटा इंटू गामा, तो बीटा इंटू, बीटा कौन सा है यार, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अच्छा मुझे इसका भी रूट पता करना होगा, इस इक्वेशन में भी रूट पता करना होगा। ठीक है, यहाँ पे भी रख के मुझे पता करना होगा, तभी वहाँ से आएगा। तो मैंने क्या किया कि स्पेस तो नहीं है यार, मैं ट्राई करता हूँ यहीं पे, तो मैं इसमें इसका रूट पता किया मैंने, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 27 इंटू लेमडा का वैल्यू कितना है 1/9, तो मतलब ये 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन ले लिया, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस x प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0, तो 3x माइनस ऑफ 3x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो x माइनस ऑफ 3 इंटू, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो कितना मिल जाएगा मुझे, x माइनस, मैं कहाँ लिखूँ इसको यहाँ पे लिख देता हूँ यार, ये वाला पार्ट विजिबल होगा, नहीं ये भी पार्ट विजिबल नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, बीटा गामा बाई लेमडा निकालना है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को लेमडा का वैल्यू 1/9 रख दिया, तो कितना मिल गया मुझे, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस ऑफ 9 रखते हैं, ये 3 हो गया। अब इसको स्प्लिट कर लिया, 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस ऑफ 3, तो यहाँ से ये 3x कॉमन ले लिया, x माइनस ऑफ 3 माइनस x माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0, तो x माइनस ऑफ 3 इंटू 3x माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0। x का वैल्यू 1/3 और x का वैल्यू 3 कौन सा है, गामा का वैल्यू है, और 1/3 किसका वैल्यू है, अल्फा का वैल्यू है। तो गामा का वैल्यू मुझे कितना मिल गया, ये है बीटा का वैल्यू मुझे कितना मिल गया, 2/3, और गामा का वैल्यू कितना मिल गया मुझे, 3। अब सारे वैल्यू मुझे पता चल गए। ठीक है, अब क्या करूँगा, आई विल जस्ट सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे रख देना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बीटा गामा, मतलब बीटा गामा बाई लेमडा, बीटा का वैल्यू कितना है 2/3, ये पार्ट तो दिख रहा है ना, बीटा का वैल्यू है 2/3 इंटू गामा का वैल्यू 3, और इसका वैल्यू कितना है, लेमडा का वैल्यू 1/3 है, 1/9 है सॉरी, तो कितना हो गया, ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, 9 इंटू 2 18 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ ये नहीं है, जस्ट ये टू अंडरस्टैंड कि अल्फा बीटा गामा कैसे पता करना है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ क्वेश्चन कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लेमडा है, पहले मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करते ही मुझे एक से कुछ वैल्यू आ गया, उस इक्वेशन को किसी इक्वेशन में रख दिया, वहाँ से मुझे
लेमडा का वैल्यू मिल गया, लेमडा का वैल्यू रख दिया फिर यहाँ पे, और यहाँ से मुझे अल्फा एंड बीटा मिल गया। इस लेमडा का वैल्यू यहाँ रख दिया, इस यहाँ से मुझे अल्फा एंड गामा मिल गया। मुझे निकालना है बीटा गामा बाई लेमडा, बीटा गामा बाई लेमडा का वैल्यू रख दिया, आंसर आ गया। ठीक है, ये रहा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पे है, क्या मांग रहा है ये, कह रहा है कि वैल्यू ऑफ, ये बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ रियल नंबर ए कोई वैल्यू है, ठीक है, जिसका वैल्यू कितना है 3/2 बीटा, 3/2 बीटा। तो बीटा का वैल्यू क्या होगा? अच्छा, इक्वेशन में इसने दे रखा है एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5ax प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ए एक क्या है, रियल नंबर है, ए का वैल्यू इसने ये दे रखा है, तो बोल रहा है कि क्या होगा बीटा का वैल्यू। तो पहले क्या करना, मुझे ए का वैल्यू निकालना है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों का सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या मिला मुझे -4ax प्लस ऑफ 6। जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया तो ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया -4ax, ये हो गया 6। तो ax का वैल्यू कितना मिल गया मुझे, इसको इधर ले लिया, तो 4ax का वैल्यू कितना मिल गया मुझे 6। ठीक है जी, तो x का वैल्यू कितना हो गया 3/2a, x का वैल्यू मुझे कितना मिल गया 3/2a। अब मैं क्या करूंगा, इस x का वैल्यू 3/2a एक इक्वेशन में रख दूंगा। ठीक है, अब मैं ऊपर वाला इक्वेशन में रख दिया, तो कितना मिला मुझे 9/4a² माइनस, फिर यहाँ पे रख दिया, कितना मिला मुझे 5a इंटू 3/2a प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कितना मिला 9/4a², a से कैंसिल हो गया, -15/2 प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0। अब मैं क्या किया, एलसीएम ले लिया, 9/4a²। ठीक है जी, 9 अब मैं व्हाट आई डिड आई एक्सप्लेन यू वंस मोर। मैंने क्या किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, -5ax में से सब्ट्रैक्ट कर दिया ax को, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये 4ax हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 हो गया। 4ax का वैल्यू 6 के बराबर आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 3/2a आ गया। अब इस इक्वेशन को किसी एक इक्वेशन में मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, मैंने पहला वाला में सब्स्टिट्यूट कर दिया, 9/4a² माइनस ऑफ 5a इंटू 3/2a, a से कैंसिल हो गया, 15/2 प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, यहां से मुझे मिल गया कितना, ये कॉमन ले लिया, तो -15 प्लस ऑफ 2 कितना हो गया -13/2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको इधर ले लिया और इसको इधर, तो कितना हो गया ये 9/4a² इज इक्वल टू 13/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 बचा, तो ये कितना हो गया 9/26 इज इक्वल टू a²। कितना मिला मुझे 9/26 इज इक्वल टू a²। अब दोनों साइड में रूट ले लिया, तो x का वैल्यू मुझे कितना मिला, a का वैल्यू कितना मिला 3/√26। अब ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये 2 टाइम्स ऑफ बीटा है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ बीटा का वैल्यू कितना होगा 13, तो बीटा का वैल्यू 13 आ गया, क्योंकि 26 है ना, 26 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 13, तो आ गया 13। ठीक है, ये होता है। क्वेश्चन आसान था, कुछ नहीं था, ये 2022 का जैसे कुछ क्वेश्चन होगा। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट है मेरे दोस्त, कि अगर किसी इक्वेशन का, ये है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ x², x एंड कांस्टेंट टर्म अगर रियल नंबर है, एंड उसका एक रूट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दूसरा रूट क्या होगा, उसका कंजुगेट होगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि any quadratic equation if I have written, let us suppose ax² plus of bx plus of c is equal to 0 and abc क्या हो, एक रियल नंबर हो, abc क्या हो, रियल नंबर हो, और इसका एक रूट्स क्या हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो ये दूसरा रूट क्या होगा, इसका कंजुगेट ही होगा, इसका क्या होगा, कंजुगेट ही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बट अगर ये रियल नंबर नहीं हो, लेट अस सपोज कि ऐसे दिया इसने ix प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0, तो इस केस में ये कंजुगेट नहीं होगा, इस केस में इसका रूट कंजुगेट नहीं होगा।
लेकिन अगर ये एक इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस प्लस 4, ठीक है। अगर मैं इसका रूट्स निकाला तो 1 प्लस और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ऑफ 16 डिवाइडेड बाई कितना 2। तो क्या मिला ये 1 प्लस और माइनस 1/2, ये मिल गया रूट अंडर 15i/2। यू कैन से ये कंजुगेट में है। क्या है ये? कंजुगेट में है। एक रूट क्या है 1 प्लस ऑफ रूट अंडर 15i/2 है, दूसरा रूट क्या है -1/2 माइनस रूट अंडर 15/2i है। मतलब एक दूसरा के क्या है ये कंजुगेट्स है, ठीक है। तो यही यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1 माइनस ऑफ 1 4, तो ये क्या हो गया दिस रूट्स आर इन कंजुगेट। बट यहीं पे अगर कोफिशिएंट रियल नंबर नहीं हो, मैंने आई लिख दिया, तो ये कंजुगेट में नहीं होगा, तो ये कंजुगेट में नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि क्या है कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ऑफ 5 कर रहा है कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर 3x प्लस ऑफ 5 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ऑफ सी इक्वल टू 0। बोल रहा है कि इसके रूट में एक कॉमन रूट्स है। क्या है? एक कॉमन रूट्स है। तो बताना है कि a प्लस बी प्लस सी का मिनिमम वैल्यू कितना होगा। a प्लस बी प्लस सी का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, राइट। अच्छा, अगर मुझे इस इक्वेशन का पहले रूट निकाल लेते हैं, क्या है तो x इज इक्वल टू -3 प्लस और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ऑफ कितना हो गया 20, राइट, बाई 2। तो हाउ मच आई गॉट इट -3/2 प्लस 15i/2 -3/2 माइनस i 15/2। अब यू कैन सी कि ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, और कॉम्प्लेक्स रूट किस में आकर करते हैं? कंजुगेट में। मतलब इसका एक रूट इसके बराबर है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है ABC एक रियल नंबर है, और ये क्या है इसका कंजुगेट ही हो। अगर ये बराबर है तो ये वाला क्या होगा इसका कंजुगेट होगा, और ये क्या होगा इसका कंजुगेट होगा, राइट। मतलब क्या? मतलब दोनों रूट्स बराबर है। इनडायरेक्टली व्हाट दे आर टेलिंग कि दोनों रूट्स बराबर है। अगर दोनों रूट्स बराबर हैं तो क्या इजी इट इज, कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे, राइट। तो इसका कोफिशिएंट कितना a/1, इसका कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट हियर 3, कांस्टेंट टर्म c, कांस्टेंट टर्म 5, ठीक है। अब मान लिया k के बराबर है, तो a का वैल्यू कितना हो गया k, b का वैल्यू 3k, c का वैल्यू 5k। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है मुझे a प्लस बी प्लस सी का मिनिमम वैल्यू चाहिए। मतलब k प्लस 3k प्लस 5k, मतलब 9k का मिनिमम वैल्यू चाहिए। मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, राइट। तो k का वैल्यू कितना रख दूं 1, तो कितना हो गया 9 इसका मिनिमम वैल्यू हो गया। मिनिमम वैल्यू क्या हुआ 9, ठीक है। इंटीग्रल वैल्यू चाहिए मुझे, तो ये 9 आंसर हो गया। तो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियोस फ्रेंड्स। इस वीडियो में वी हैव कवर्ड न्यूटन्स फार्मूलास एंड ये कॉमन रूट्स, कंडीशन फॉर द कॉमन रूट्स। नेक्स्ट वीडियोस आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली टुमारो आई विल अपलोड इट, जहाँ पे विल कम टू नो कि लोकेशन ऑफ रूट्स कैसे पता करते हैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे पता करते हैं, लोकेशन ऑफ रूट्स, और उसका सर्टेन 4-5-6 कंडीशंस है दैट वी आर कमिंग टू नो इन टुमारो वीडियोस। ठीक है फ्रेंड, दैट्स इट फॉर टुडे and all the best. I hope you all are preparing well for your exam. I think exam is starting within 2 to 3 days. Prepare the exam. If any need you required, just reach out to me. ठीक है, I will try to help it out. ठीक है, and after your mains exam, once the exam will be over, we'll attempt for the advance. ठीक है, advance के लिए we'll plan it. ठीक है, एक मैं videos बना दूंगा how we'll make the advance, and then we are going to do. First we'll try to finish it deleted videos. जो भी deleted मतलब portion है ना उसमें, वीडियो नहीं सॉरी, जो भी deleted portion है मेंस में और एडवांस में they are asking, so that one we are going to do cover up first. ठीक है, I will talk about it in details. Let us finish the mains first. ठीक है, so that's it for today videos friend. See you in the next videos. All the best and Jai Hind.